صبح اذان کے وقت اٹھ کر سب نے وضو کر کے باجماعت نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد صرف چائے اور رات کی باسی روٹی سے ناشتہ کیا گیا۔ کمانڈر سلطان علی نے کمانڈو عمران سے کہا، ہم آپ کو بھی وہی ناشتہ دیں گے جو ہم سب رضاکار کرتے ہیں۔ ہم نے اس وقت تک اپنے اوپر ہر قسم کا آرام حرام کر دیا ہے جب تک کہ ہم دکن کو پھر سے ایک بار اسلامی ریاست نہیں بنا لیتے۔ علی جاہ نے کہا، آپ لوگ یہیں رہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ لوگوں کو جس وقت واپس آنا ہوگا رضاکار آپ کو اپنی حفاظت میں اورنگ آباد پہنچا دیں گے۔ علی جاہ سلطان علی صاحب سے اجازت لے کر اورنگ آباد واپس چلے گئے۔ کمانڈر سلطان علی کا خاص جاسوس تیسرے پہر کمین گاہ میں ٹریننگ کیمپ کی تفصیلات لے کر پہنچ گیا۔ سلطان علی کمانڈر نے عمران اور جبران کی موجودگی میں اپنے جاسوس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ اس نے دہشت گرد ٹریننگ کیمپ کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کے مطابق یہ ٹریننگ کیمپ وہاں سے 50 میل کے فاصلے پر گھنے جنگل کے وسط میں واقع تھا، جس کے 3 طرف اونچی چٹانوں نے دیواریں سی کھڑی کر رکھی تھی۔ صرف ایک طرف سے کیمپ میں داخل ہونے کا راستہ تھا، جہاں خاردار تاروں والا گیٹ ہر وقت بند رکھا جاتا تھا، صرف اپنے آدمیوں کے آنے اور شناختی کارڈ دکھانے پر کھولا جاتا تھا۔ چٹانی دیواروں کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس کی ڈھلوان چھتوں اور پتھر کی دیواروں والی 4 بیرکیں تھیں جہاں دہشت گرد رات کو سوتے تھے۔ ان دہشت گردوں کو انڈین آرمی کے 6 ٹرینڈ کمانڈو تربیت دیتے تھے۔ کیمپ میں کوئی دہشت گرد عورت زیر تربیت نہیں تھی۔ اس کیمپ میں 50 جرائم پیشہ افراد کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ انہیں ریلوے پلوں اور بڑے بڑے شاپنگ پلازوں کے نیچے طاقتور بم لگانے، گھروں میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے تمام کے تمام گھر والوں کو ہلاک کرنے اور عبادت گاہوں میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نمازیوں پر گولیاں برسا کر فرار ہو جانے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اپنے سراغ رساں نے کہا، یہ 50 کے 50 افراد سابق قیدی، چھٹے ہوئے بدماش اور سزا یافتہ مجرم تھے۔ انہیں لالچ دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور جتنے دھماکے کریں گے اس کے حساب سے ہر آدمی کو ایک دھماکے اور ایک مسلمان کو قتل کرنے کے عوض 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور ہر ایک دہشت گرد کو 25 ہزار روپے بطور ایڈوانس دے بھی دیے گئے ہیں۔ یہ رقم ان کے نام کے اکاؤنٹ کھلوا کر بینک میں جمع بھی کروا دیے گئے ہیں۔ ان دہشت گردوں میں قاتلوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کونے والی ایک چھوٹی سی کوٹڑی میں ان کا اسلحہ وغیرہ کا ڈپو ہے جس کی طرف جانے کی کسی دہشت گرد کو اجازت نہیں ہے۔ ایک ڈوگرا لانس نائک ضرورت کے مطابق ان کے انچارج کمانڈو کی نگرانی میں اسلحہ وغیرہ سپلائی کرتا ہے اور مشق کے بعد اسلحہ واپس سٹور میں رکھوا دیتا ہے۔ اپنا یہ جاسوس خفیہ کیمرے سے ٹریننگ کیمپ کی کچھ تصویریں بھی لے آیا تھا۔ ان تصویروں کو کمانڈو عمران اور جبران نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور ضروری چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد کیمپ کو برباد کرنے کے منصوبے پر غور شروع ہو گیا۔ کمانڈو عمران کہنے لگا، ہم جو بھی منصوبہ بنائیں یہ انتہائی ضروری ہوگا کہ سارے کے سارے دہشت گرد ایک ہی حملے میں قتل کر دیے جائیں۔ ان کا اسلحہ برباد ہو چاہے نہ ہو، لیکن دہشت گرد سارے کے سارے 6 انڈین ٹرینڈ کمانڈوز کے قتل ہونے چاہیے۔ کمانڈر سلطان علی نے کہا، ہمارے سرفروش رضاکار کمانڈو جب کسی جگہ شب خون مارتے ہیں تو وہاں تمام کے تمام کافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہاں کوئی پالتو بلی یا بکری ہوتی ہے وہ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارے کمانڈو رضاکاروں کی ٹریننگ کا پہلا اصول ہے، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو۔ ہمارا ایکشن بیک وقت شروع ہوگا اور وہاں سوائے ہمارے اور کوئی زندہ نہیں رہے گا، لیکن سب سے پہلے ٹارگٹ دیکھنے اور پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لیے ہم میں سے 2 آدمیوں کو جانا پڑے گا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک میں خود ہوں گا اور دوسرا، کمانڈو عمران نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اور دوسرا آدمی میں ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ریکی کرنے جاؤں گا۔ میں اور جبران ہم مکمل طور پر تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں، جبران پیچھے رہے گا۔ کمانڈر سلطان علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو گے، ہم آج رات کو دیکھ بھال کے اس مشن پر جائیں گے۔ باقی کا دن کمانڈو عمران اور جبران نے کمانڈر سلطان علی کے ساتھ دیکھ بھال کے مشن کی تفصیلات طے کرتے گزارا۔ ان کے ساتھ وہ رضاکار بھی بیٹھا تھا جو دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ کی سراغ رسانی کر کے آیا تھا۔ یہ رضاکار بھی سلطان علی اور عمران کے ساتھ رات کے ریکی مشن پر جا رہا تھا۔ ان رضاکاروں کے پاس 3 فوجی جیپیں بھی تھیں جو انہوں نے جنگل میں ہی ایک جگہ چھپائی ہوئی تھی، مگر وہ جیپوں پر نہیں جا رہے تھے کیونکہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ وہاں جیپ نہیں جا سکتی تھی، اور جیپ کے انجن کی آواز انڈین کمانڈوز کو کیمپ میں ہوشیار بھی کر سکتی تھی۔ کمانڈر سلطان علی نے اپنے ایک رضاکار سے کہا، علی نواز، 3 برق رفتار گھوڑے شام کے وقت تیار رکھے جائیں اور ہر گھوڑے کے تھیلے میں وہ تمام اسلحہ بھی رکھ دیا جائے جس کی ہمیں اس دیکھ بھال کے مشن میں ضرورت پڑے گی۔ جاؤ۔ شام کے وقت رضاکاروں کی اس خفیہ کمین گاہ میں 3 گھوڑے تیار ہو کر درختوں کے نیچے کھڑے تھے۔ کمانڈر سلطان علی نے ایک دوربین خود اپنے پاس رکھ لی اور ایک دوربین کمانڈو عمران کو دی۔ اس دوربین میں ایسے طاقتور لینز لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک سیمی آٹومیٹک گلاک کمانڈو پسٹل بھی رکھ لیا۔
हर घोड़े के साथ एक छोटा फौजी थैला बंधा हुआ था जिसमें एक एक स्टेन गन, माँ, मैगजीन बेल्ट के रख दी गई थी। उन्होंने एक एक कमांडो चाकू भी रख लिया था। पिस्तौलों के आगे साइलेंसर लगा दिए गए थे ताकि अगर फायर का कोई मौका मिल जाए और मजबूरन फायर करना पड़े तो उसके धमाके की आवाज पैदा न हो। थैले में पानी का एक एक छोटा कैन भी मौजूद था। रात के पूरे 12 बजे ये लोग घोड़ों पर सवार होकर अपने देखभाल यानी रेकी वाले मिशन पर रवाना हो गए। जासूस रजाकार ने कमांडर सुल्तान अली को बता दिया था कि दहशतगर्दों का ये कैंप कौन से जंगल में है। जासूस रजाकार आगे आगे था, उसके पीछे कमांडर सुल्तान अली का घोड़ा था और उसके पीछे कमांडो इमरान का घोड़ा। तीनों घोड़े कदम कदम चल रहे थे। रजाकारों की खुफिया कमीनगाह के घने जंगल से निकलकर जब ये लोग जरा खुले जंगल में आए तो उन्होंने अपने घोड़े एक खास रास्ते पर डाल दिए और उन्हें जरा तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। घोड़े उन जंगलों में चलने के आदी थे और सुल्तान अली और रजाकार जासूस बड़े मशाक घुड़सवार थे। उस जंगल के ये सारे रास्ते उनके देखे भाले थे। घोड़े कदरे तेज रफ्तार के साथ घाटियों, खाइयों और ऊंचे टीलों के दामन में से रात के अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे थे। कमांडो इमरान को भी घुड़सवारी की काफी मशक थी। काफी देर तक घोड़े अपने अपने सवारों को लेकर अंधेरे जंगल में दौड़ते रहे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने घोड़े रोक लिए। रजाकार जासूस ने अंधेरे में एक तरफ इशारा करते हुए कमांडर सुल्तान अली से कहा, यहाँ से आगे इन पहाड़ियों के पीछे ट्रेनिंग कैंप है। कमांडर सुल्तान अली ने दूरबीन लगाकर दूर की स्याह पहाड़ियों को देखते हुए कहा, ये माथर मालिया की पहाड़ियां हैं। रजाकार जासूस बोला, जी हाँ सर। कमांडर सुल्तान अली ने घोड़े को उन पहाड़ियों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो। तीनों घोड़े एक दूसरे के आगे पीछे अंधेरे में दूर स्याह ऊंची दीवार की तरफ रवाना हो गए। जितना इलाका नीम मैदानी था वो उन्होंने घोड़े दौड़ाते हुए उबूर किया। उसके बाद ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ घोड़ों की रफ्तार हल्की हो गई। आखिर वो माथर मालिया की पहाड़ियों के दामन में पहुंच गए। रजाकार जासूस ने उन्हें एक पहाड़ी दर्रे में से गुजारा तो दर्रे के आखिर में पहुंचकर रजाकार जासूस ने अपने घोड़े की बागें खींच ली और बोला, सर, यहाँ से हमें सामने वाली पहाड़ी की चढ़ाई चढ़नी होगी। घोड़े इसी जगह छोड़ने पड़ेंगे। कमांडर सुल्तान अली और कमांडो इमरान घोड़े से उतर गए। उन्होंने थैलों में से अपनी अपनी स्टेन गन निकाल कर कंधों से लटका ली, कैन में से थोड़ा थोड़ा पानी पिया और पहाड़ी की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। यहाँ रजाकार जासूस उन्हें गाइड कर रहा था। पहाड़ी की चढ़ाई दुश्वार नहीं थी, पहाड़ी भी ज्यादा बुलंद नहीं थी, फिर भी उन्हें पहाड़ी के ऊपर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर रजाकार जासूस ने नीचे इशारा किया और आहिस्ता से कहा, सर, नीचे जो चट्टानों की चार दीवारी सी नजर आ रही है, यही दहशतगर्दों का कैंप है। कमांडर सुल्तान अली और कमांडो इमरान वहीं बैठ गए। उन्होंने अपनी अपनी दूरबीन लगाकर नीचे देखा। कमांडो इमरान सुल्तान अली के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। रात की तारीकी में उसने एक धुंधला धुंधला मगर नजर आने वाला मंजर देखा। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी, उनके अंदर एक खुला मगर छोटा सा मैदान था जहां एक जानिब ढलवान छत वाली 3 बैरकें थीं। सामने की जानिब कोई चट्टान नहीं खड़ी थी। उस तरफ एक गेट बना हुआ था जो बंद था और जिसके बाहर एक मुसल्ला सिपाही का धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। ये गार्ड था और रात के पहरे पर था। कमांडर सुल्तान अली ने आहिस्ता आवाज में कमांडो इमरान से कहा, हमें उन चट्टानों के पास जाना चाहिए। यहाँ से हम अपने कमांडो एक्शन की पोजीशनों का तयन नहीं कर सकते। कमांडो इमरान ने धीमी आवाज में कहा, चलें, नीचे चलते हैं। कमांडर सुल्तान अली ने अपने जासूस रजाकार से कहा, अली नवाज, तुम यहीं ठहरोगे, हम नीचे जा रहे हैं। उसके साथ ही कमांडो सुल्तान अली और कमांडो इमरान पहाड़ी की दूसरी तरफ वाली ढलान उतरने लगे। उतराई आसान थी। वो 10-15 मिनट में ही पहाड़ी के नीचे आ गए। सामने चट्टानें खड़ी थी। वो वहीं दुबक कर बैठ गए और दूरबीन से जायजा लेने लगे कि रात के वक्त कोई गश्ती पार्टी तो गश्त नहीं लगा रही। 3-4 मिनट तक वो चट्टानों के इर्द गिर्द देखते रहे। उसके बाद कमांडर सुल्तान अली ने सरगोशी में कहा, गश्ती पार्टी कोई नहीं है, हमें किसी चट्टान पर चढ़ना होगा, आ जाओ। दोनों मुजाहिद झुककर चलते एहतियात से कदम रखते सामने वाली चट्टान की तरफ बढ़े। चट्टानें ज्यादा बुलंद नहीं थी और दरमियान वाली चट्टान सीधी नहीं थी, जरा सी ढलानी थी और उस पर जंगली झाड़ियां भी उगी हुई थी। कमांडर सुल्तान अली ने उन झाड़ियों की तरफ एक खास इशारा किया जिसका मतलब था कि हम इन झाड़ियों को पकड़कर चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। कमांडो इमरान कमांडर सुल्तान अली के साथ दबे पांव चलता चट्टान की तरफ बढ़ा। चट्टान के नीचे अंधेरा था। वो अंधेरे में चट्टान के साथ लगकर साकित हो गए। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि उधर कोई फौजी पहरे पर गश्त नहीं लगा रहा तो उन्होंने झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन जंगली झाड़ियों की वजह से चट्टान पर चढ़ना आसान हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो चट्टान के ऊपर थे। चट्टान के ऊपर पहुंचते ही वो पेट के बल लेट गए और दूरबीनें लगाकर नीचे देखने लगे।
दूरबीनों के लेंस ने उन्हें दिखाया कि नीचे चट्टान के साए में 3 बैरकें थीं। सामने बांस का खारदार तारों वाला गेट था। उसके आगे एक मुसल्ला सिपाही टहल रहा था। गेट के साथ ही अंदर की जानिब एक कोठरी बनी हुई थी, शायद जहां असलहा वगैरह रखा हुआ था। बैरकों की छत घास फूस की थी। उस छत में से स्टेन गन की गोलियां गुजरकर बैरकों के अंदर सोए हुए दहशतगर्दों को भून सकती थी। उन पर फायर किए गए रॉकेट उन बैरकों को जहन्नमी शोलों में बदल सकते थे। इस मुशाहिदे के बाद वो चट्टान पर से उतरकर वापस पहाड़ी की तरफ आ गए। ये दक्कन के वस्ती जंगलों की मातरमालिया की पहाड़ी थी, जिस पर से उतरने के बाद तीनों मुजाहिद उन दरख्तों की तरफ गए जहां उनके घोड़े बंधे हुए थे। वो खामोशी से घोड़ों पर सवार हुए और अपनी खुफिया कमीनगाह की जानिब रवाना हो गए। रज़ाकारों की खुफिया कमीनगाह पर पहुंचने के बाद वो सब एक दूसरे को शब बखैर कहकर सो गए। कमांडर सुल्तान अली ने इमरान से कहा, सुबह बात होगी, और उसके बाद वो भी आराम करने चल दिया, क्योंकि रात बहुत गुजर चुकी थी और जिस मकसद के लिए वो गए थे वो पूरा हो गया था। अगले दिन कमांडर सुल्तान अली सुबह सुबह नमाज फजर के बाद अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ जीप पर किसी जगह रवाना हो गया, जिसके बारे में उसने इमरान और जिब्रान को कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और किस वक्त वापस आएगा। वो दोपहर के बाद वापस आया। इमरान और कमांडो जिब्रान को लेकर अपने सादा से झोंपड़े में बैठ गया और कहने लगा, हम आज रात ट्रेनिंग कैंप पर शब खून मारेंगे। हमारे कैंप नंबर 2 के रजाकार कमांडो टारगेट पर रात के वक्त पहुंच जाएंगे। हम तीनों यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। कमांडो एक्शन का टाइम रात के ठीक 2:15 बजे रखा गया है, क्योंकि उस वक्त चौकीदार और पहरेदार भी ऊँग रहे होंगे। कोई खास बात पूछनी हो तो पूछ लें। कमांडो जिब्रान ने पूछा, हमारे रजाकार कमांडोज की नफरी कितनी होगी? कमांडर सुल्तान अली ने कहा, आप खुद कमांडो हैं, आप जानते हैं कि कमांडोज की नफरी हमेशा कम होती है, लेकिन एक कमांडो में 100 नफरी का मुकाबला करने की सलाहियत होती है। कमांडो इमरान कहने लगा, हमें बैक वक्त बैरकों, असलहे की कोठरी और गेट वाली चेक पोस्ट पर हमला करना होगा, और इस बात को खास तौर पर पेश नजर रखना होगा कि कैंप का कोई कमांडो या फौजी पीछे हेडक्वार्टर के साथ वायरलेस पर राब्ता कायम न कर सके। अगर पीछे उनके फौजी हेडक्वार्टर को इत्तला पहुंच गई तो उनकी मदद को दूसरे ही लम्हे गनशिप लड़ाका हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। कमांडर सुल्तान अली ने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, हमारा हमला आनन फानन होगा। हमारे कमांडो रजाकार दुश्मन पर बिजली बनकर गिरेंगे और उसे तबाह करके दूसरे लम्हे वापस आ जाएंगे। जिब्रान ने पूछा, हम यहाँ से किस वक्त रवाना होंगे? कमांडर बोला, वही हम रात के ठीक 12:15 पर रवाना होंगे। उन्होंने सरे शाम ही थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गए। कमांडर के बॉडीगार्ड ने ठीक रात के 12 बजे उन्हें जगा दिया। उसी वक्त उन्होंने बेदार होते ही तैयारी शुरू कर दी। एमुनिशन स्टोर में जाकर जरूरी असलहे वगैरह से लैस हुए और ठीक 12:15 पर उन तीनों मुजाहिदों के बर्क रफ्तार घोड़े माथरमालिया पहाड़ी वाले रॉ के दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप की तरफ रवां दवां थे। आज उनके घोड़ों की रफ्तार जरा ज्यादा ही थी, शायद इसलिए कि वो एक्शन की रात थी। उस रात उन्हें भारत सरकार का वो दहशतगर्दी का कैंप तबाह करना था, जहां पाकिस्तान में स्मगल किए जाने वाले दहशतगर्दों को बमों के धमाकों और पाकिस्तान के मुसलमानों को कत्ल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहाड़ी जंगल के दुश्वार गुजार रास्तों में से रात के अंधेरे में घोड़े दौड़ाते वो माथरमालिया पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। जहां वो अपने घोड़े एक जगह दरख्तों के झुंड में बांधने गए तो वहां 15-20 घोड़े पहले ही बंधे हुए थे। कमांडर सुल्तान अली ने उन घोड़ों को देखकर कहा, हमारे रजाकार कमांडो पहुंच चुके हैं। इमरान और जिब्रान को तसल्ली हो गई कि ये लोग भी पहुंच गए थे, क्योंकि ये एक्शन एक आदमी के बस का रोग नहीं था। वहां अचानक हमले की जरूरत थी और सुल्तान अली कमांडर ने ऐसा ही इंतजाम किया था। अभी तक कमांडो इमरान और जिब्रान को सुल्तान अली के रजाकारों में से एक भी कमांडो नजर नहीं आया था। वो एक दूसरे के आगे पीछे माथरमालिया की पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वो खामोशी से चढ़ रहे थे। आखिर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां भी कोई रजाकार कमांडो नहीं था। इमरान ने कमांडर सुल्तान अली से ये पूछना मुनासिब न समझा कि आपके रजाकार कमांडो कहाँ छुपे हुए हैं। वो पहाड़ी के दूसरी जानिब की ढलान उतरने लगे। सामने दामन में रात की धुंधली तारीकी में चट्टानों की वो दीवार नजर आ रही थी जिसकी दूसरी तरफ रॉ का दहशतगर्दी कैंप था। जिस वक्त वो पहाड़ी की ढलान उतरकर चट्टानों की तरफ बढ़े तो अंधेरे में से एक एक करके 4 रजाकार कमांडर निकलकर सुल्तान अली के पास आए और उसे अपनी शक्ल दिखाकर अंधेरे में पीछे हट गए। आखिर में एक और रजाकार कमांडो अंधेरे में से निकलकर कमांडर सुल्तान अली के पास आया और सरगोशी में बोला, अपने कमांडोज ने चट्टानों के ऊपर पोजीशनें संभाल ली हैं। कमांडर सुल्तान अली ने सरगोशी में पूछा, रॉकेट लॉन्चर कितने हैं? रजाकार कमांडो की सिर्फ 2 आंखें ही चमकती नजर आ रही थीं। बाकी सारा चेहरा स्याह रुमाल में छुपा हुआ था। उसने कहा, 6 पोजीशंस हैं, हर पोजीशन में 4 लॉन्चर हैं और एक मशीन गन है।
कमांडर बोला, ठीक है, हम कैंप के गेट की तरफ पोजीशन संभालेंगे। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तुम लोग कैंप नंबर 2 की तरफ चले जाओगे। एक्शन का टाइम 2:15 है। घड़ियां मिला ली हैं। कमांडर रजाकार ने सरगोशी में कहा, सब ठीक है कमांडर। सुल्तान अली बोला, ओके गो। रजाकार कमांडो अंधेरे में गायब हो गया। कमांडर सुल्तान अली ने इमरान और कमांडो जिब्रान से मध्यम आवाज में कहा, हम मगरिब की जानिब कैंप के गेट के सामने वाले टीले पर पोजीशन संभालेंगे। और तीनों मुजाहिद चट्टानों की दीवार से 10 फुट के फासले पर अंधेरे में ट्रेनिंग कैंप के गेट की तरफ चलने लगे। वो झाड़ियों में इस तरह चल रहे थे कि झाड़ियों में से गुजरने की आवाज पैदा न हो। झुककर कदम कदम चलते वो चट्टानों की दीवारों के अकब में निस्फ चक्कर काट कर ट्रेनिंग कैंप के गेट के करीब आ गए। गेट के सामने लकड़ी के खंबे पर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी में एक संतरी स्टेन गन कंधे से लटकाए सुस्त कदमों से चल फिर कर पहरा दे रहा था। कमांडर सुल्तान अली, कमांडो इमरान और जिब्रान गेट के बिलमुकाबिल टीले के दामन में जो घनी झाड़ियां थीं उसके बिल्कुल साथ साथ पोजीशन संभाले बैठे थे। उन्होंने स्टेन गन्ने अपने सामने कर ली थी और चमकती हुई खामोश आंखों से दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप के गेट की तरफ देख रहे थे। कैंप के अंदर बैरकों के दरमियान एक जगह बल्ब की रोशनी हो रही थी, बाकी सारे कैंप में अंधेरा छाया हुआ था। कमांडर ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा और सरगोशी में इमरान से कहा, 2:10 हो रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इमरान और जिब्रान ने भी अपनी घड़ियां कमांडर की घड़ी से मिला ली थी। ये 5 मिनट बड़े हैजान खेज थे। 5 मिनट गुजर जाने के बाद वहां कयामत बर्पा होने वाली थी। उनके इर्द गिर्द जंगल के माहौल पर सन्नाटा तारी था। किसी करीबी तालाब की तरफ से 2-1 झींगरों के बोलने की मुसलसल आवाज आ रही थी। कमांडो इमरान ने अपनी घड़ी की सब्ज चमकती हुई सुइयों पर नजरें जमा रखी थी। वक्त 1-1 सेकंड करके गुजर रहा था। 1 मिनट काफी देर बाद गुजरता महसूस हो रहा था। आखिरी 5 मिनटों में से 2 मिनट गुजर गए, फिर 3 मिनट गुजर गए, फिर चौथा मिनट भी गुजर गया। अब 5वां मिनट गुजर रहा था। सेकंड की सुई तेजी से हरकत कर रही थी। मिनट की सुई 5वें मिनट के निशान के करीब होती जा रही थी। इमरान को बखूबी इल्म था कि ये कमांडो एक्शन है और ठीक वक्त पर बैक वक्त शुरू हो जाएगा। कमांडर सुल्तान अली ने सरगोशी में कहा, खबरदार, तुम्हारी स्टेन गन्ने मेरे बाद फायरिंग शुरू करेंगी और फायरिंग अंधाधुंध होगी। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।